चलो anyway, we'll just get back to our topic, which will score us marks technically. The pattern of contacts among the members of the organization and the flow of information among them is communication network. तो जो भी हम लोग पैटर्न वगैरह यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, इट इज लाइक कम्युनिकेशन नेटवर्क. Network helps manager to establish contacts in different patterns through communication flows. तो जो भी communication flow होता है ना, it is because of the network. The network depends upon the magnitude of the organization. Magnitude मतलब size in simple terms. तो साइज कैसा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो टाइप का नेटवर्क वहां पे रहेगा. So nature of the communication channels in the organization and the number of person involved in the process. There can be many patterns in the communication network. हम लोगों ने जो previously इसके पहले के पार्ट में देखा है ना, वो चीज यहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे हैं. से हम लोग नेटवर्क्स कैसे सेट होते हैं वो यहाँ पे हम लोग समझने को ट्राई कर रहे हैं. Which is not too much detailed or difficult. It is very simple and basic. So the vertical network is usually between superior and subordinate and vice versa. तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, that kind of communication. तो टू वे, तो इमीडिएट फीडबैक इजीली पॉसिबल हो जाता है. और ये बहुत फॉर्मल नेटवर्क है, यूजुअल नेटवर्क ऐसा. सर्किट नेटवर्क. under this network, two persons communicate with each other. Mr. A sends message to Mr. B. After this, Mr. B communicates the feedback to Mr. A. So communication takes a form of circuit. Therefore, it is known as circuit communication. It is similar to vertical network, but circuit network A and B are not necessarily superior and subordinate. तो अभी हम लोग जो प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग बात कर रहे थे वर्टिकल में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का बात चल रहा था वहां पे. यहाँ पे ए टू बी पर्सन जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे के नहीं है. तो बाकी जो भी उसके क्वालिटीज है, इट इज लाइक द वर्टिकल नेटवर्क. ओके, एनीबॉडी नीड्स मी टू रिपीट? दैट्स गुड. चलो लेट्स मूव. चेन नेटवर्क. This network of communication follows the organization hierarchy and the chain of command. All subordinates receive the commands or instructions from their superior. B, C, D, and E, F, G are subordinates to A in the organization hierarchy and receive commands from A, which flows the way shown in the diagram. तो अभी A is like suppose boss. तो बॉस से उसके दो डिपार्टमेंट्स को कम्युनिकेशन गया, वो डिपार्टमेंट से उनके नीचे वाले लोगों पे कम्युनिकेशन गया, और फिर और नीचे जो लास्ट काम करने वाले लोग हैं उन पे कम्युनिकेशन गया. अंडरस्टूड? इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हील नेटवर्क. हियर ऑल द सबऑर्डिनेट्स रिसीव कमांड्स फ्रॉम वन सुपीरियर. दिस इज हाईली सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क where each subordinate receives commands or instructions from a single authority or superior A and wants the immediate feedback. जैसे हम लोग बात कर सकते हैं एग्जाम्पल में, दिस नेटवर्क इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग. अभी इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग क्या करते हैं, डेकोरेटर से बात किया, डेकोरेटर ने कम्युनिकेट किया, फिर उसके अलावा कैटरिंग वाले से बात किया, कैटरिंग ने रिस्पॉन्ड किया, फूल वाले से बात किया, फूल वाले ने रिस्पॉन्ड किया, फिर जो शादी के जो लड़का लड़की के घर वाले उनसे बात किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया. दैट इज हाउ इट इज. तो दैट इज अ सेंट्रल पर्सन, और वो सेंट्रल पर्सन से अलग अलग लोगों का कम्युनिकेशन. चलो, स्टार नेटवर्क. अंडर स्टार कम्युनिकेशन network, all members of group communicate with each other and exchange information. This network is a must for group communication or where teamwork is involved. तो ये complete teamwork के अंदर जरूरी है. When people are trying to share things and figure out a solution, ऐसा बोल सकते हैं. तो वो टाइम पे this kind of communication is done. तो ये सारे मेंबर्स के लिए ओपन रहता है कम्युनिकेशन. Without any hesitation, they can speak to each other. The effectiveness of the above networks of communication channels depend upon their users. कैसा मैनेजमेंट है, कैसा यूजर्स है, और साइज ऑफ द कंपनी जो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके हिसाब से कम्युनिकेशन होता है. अंडरस्टूड? Above all, the seriousness with which all these human resources make use of facilities provided to them by the organization to complete the objectives. तो जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स है, वो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आपस में उन लोग का वैसे टाइप का कम्युनिकेशन होता है. सो ये पूरे के पैराग्राफ में हम लोग ने क्या समझा, क्या सीखा?
सिर्फ इतना एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज जो टेक्निकली दिखने में सुनने में बहुत छोटा लगता है, बट देयर इज अ लॉट ह्यूज एंड बिगर. क्या? एक कम्युनिकेशन फेलियर्स will result into lot of personal and professional losses or fail to communicate or whatsoever. तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, जिसके अंदर आपका सिर्फ बात करना ही नहीं होता है, बट आपने समझना भी होता है. तो ये तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इस चैप्टर के अंदर सीखे हैं बात करने को लेके. फिफ्थ चैप्टर का नाम क्या है देखो, सी, लिसनिंग स्किल्स. तो टू वे प्रोसेस का फोर्थ चैप्टर इज आवर फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट प्रोसेस. द सेकेंड प्रोसेस इज लिसनिंग स्किल्स. चलो लेट्स जस्ट मूव अहेड. Yeah. Communication failures may be caused due to many reasons. Few of them are as follows. Lack of planning. Every message is conveyed with a specific purpose in mind. One needs to know one's own abilities to express message, simultaneous personality attributes of the recipients. ये रिवीजन है गाइस, चैप्टर का ये पूरा रिवीजन है जो हम लोग ने स्टार्टिंग से सीखा है. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे वो लोग क्या बोल रहे हैं, लैक ऑफ प्लानिंग. अगर हमें पता नहीं है कि हम क्या बात करने वाले, कैसे बात करने वाले, किससे बात करने वाले, सामने का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, ओके वो सारी चीजें हमें अगर पता नहीं है तो हम लोग उसको ठीक से प्लान नहीं कर पाएंगे और कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे वो हिसाब से. चलो कम्युनिकेट करने ट्राई भी किया विदाउट इम्प्रॉपर प्लानिंग, तो जो एडिक्वेट रिजल्ट है हमें चाहिए, जो डिजायर्ड रिजल्ट है, ओके वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा. अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? एग्जाम्पल एक ही डिस्कस कर रहा हूं मैं, बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे. An invitation to potential investors to deposit money in a mutual fund may not offer all the relevant details, such as entry, exit points, and all the risks involved. This would lead to a loss of interest of the investor in the scheme. बहुत इंपॉर्टेंट चीज. बहुत साल पहले जब ये टीवी पे आता था इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर पता है वो एक चीज आता था जो एकदम फास्ट बोलते थे उन लोग इंग्लिश में, किसी को कभी समझ में नहीं आया. वो याद आ रहा है? टीवी पे अगर आपने कभी बचपन में ऐड देखा रहेगा फ्यू इयर्स अगो, तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा वो बहुत फास्ट बोलते थे. तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए ऐड था, लेकिन इन्वेस्टर को है ना समझ में नहीं आता कि वो पूरा चीज क्या बोला करके. या सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ओवर देयर. एग्जैक्टली जो मैंने अभी जस्ट फास्ट बोल के दिखाया. तो वो चीज की वजह से क्या होता था, लोग रिस्क में जाते थे. अंडरस्टूड? तो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वही समझना कि हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन दे नहीं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे कि सामने वाले को समझ में आए, तो वो अपना इंटरेस्ट बना के रखेगा. वरना वो क्या करेगा, उस स्ट्रेटेजी में से बाहर निकल जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. बाद में अगर आप ऑब्जर्व करोगे कुछ वक्त बाद एड में वो जो फास्ट चीज बोलते थे, वही चीजें उन लोग काफी स्लो बोलने लग गए, ताकि जो इन्वेस्टर है जैसे हमारे जैसे लोग, हम लोग को समझ में आए कि वो क्या बोलने को ट्राई कर रहा है, और फिर हम लोग सोच समझ के उसके अंदर इन्वेस्ट करें. और फिर उनका इन्वेस्टमेंट के अंदर जो कस्टमर जा रहे थे वो जाने कम हो गए. अंडरस्टूड एवरीवन? ने मैसेज जो भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसका फायदा क्या हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है, उसको रिवाइज कर सकते हैं, जहां पे जरूरत है वहां पे करेक्शन कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फॉलोड एवरीवन? चलो गाइस लेट्स मूव अहेड. फॉल्स assumptions, very important one. In many communication situations, the sender starts with several assumptions which may not be true. Communication करते वक्त हम लोग assume करते हैं. It is like girls जैसा, गर्ल्स ज्यादातर ऐसा करते हैं. गर्ल्स प्लीज डोंट टेक दैट पर्सनली. ऐसा एंड पॉइंट तक पहुंच जाते हो, मराठी में ऐसा बोलते टोका पर्यंत विचार करना, एंड तक सोचना. मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टार्ट टू एंड सब चीजें समझने को ट्राई करें, एनालाइज करने को ट्राई करें और उसके बाद जज करें, पर नहीं, हम तो एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे भैया. सो दैट शुड नॉट बी डन ऐसे. तो वो क्यों होता है, क्योंकि अजम्पशंस गलत रहते हैं. अजम्पशंस गलत रहेंगे, या हो सकता है सही भी हो गलत भी हो, वो एक अलग पॉसिबिलिटी है. सो लॉजिक समझा गाइस एवरीवन? तो वो एक फॉल्स अजम्पशन सेंडर के थ्रू होना, दैट इज अ रॉन्ग थिंग. तो उसका टेक्निकली क्या होने वाला है, लॉजिकली रिजल्ट ऐसा आएगा जो हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया है. ढंग का रिजल्ट नहीं आएगा इन टेक्निकल वर्ड्स. ओके ये इतना समझ में आया. चलो लेट्स गो अहेड. Ambiguity. We must remember that our intentions are strictly private. They are only known to us. Therefore, the receiver may not accurately understand the meaning intended by us. A wrong interference is often drawn when the message yields more than one meaning. तो जब भी हम लोग कम्युनिकेट करने को ट्राई करते हैं तो हमारा
एक स्टेटमेंट का मीनिंग अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, समझ में है? तो वो होना नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? इट इज लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा लेवल का चीज है। तो द मैसेज कैन बी अंडरस्टूड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। हम लोग को जो समझवाने का है सामने वाले को, वो पॉइंट को छोड़ के कोई दूसरा पॉइंट भी समझ सकता है वो। ये एक क्या बोल सकते हैं उसको, कम्युनिकेशन फेलियर है तरीके का। क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड? लेट्स गो अहेड। They have also given the examples. You can go through it later on. I'm not discussing those things right now, okay, because it is basic and simplified. Next, distortions. Many distortions in communication do not register because the receiver is busy or preoccupied with other things, but the sender believes that he has delivered the message correctly and desired action will follow. जैसे मैं आपसे बात करने को ट्राई कर रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ समझा क्या, समझा क्या, आपको आवाज ही नहीं आया ठीक से, ओके, तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे वो हिसाब से, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क का डिस्टॉर्शन। ऐसा अलग अलग टाइप का डिस्टॉर्शन होता है। अगर मैं किसी और चीज में बिजी हूँ, जैसे अभी एक अच्छा एग्जांपल ये था, अपने पटेल ने अभी अच्छा एग्जांपल दिया, सर 9 बजे कॉल करना है क्या, बट उसको ये शायद पता नहीं था ना कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? दैट इज हाउ इट इज। तो दैट इज डिस्टॉर्शन, लाइक अनक्लियर मैसेज। एंड डिजायर्ड द एक्शन, तो अभी भी मैंने जो बात किया ना, वो उसको मतलब उसका रिजल्ट क्या है, नहीं ये अच्छा एग्जांपल नहीं है। इसका अच्छा एग्जांपल रहेगा कि मैंने मेरे साइड से पूरा कम्युनिकेशन कर दिया, मैंने सब कुछ सिखा दिया, ठीक है, ये समझ के कि आपको सब कुछ समझा, पर क्या आपको सब कुछ समझा? क्योंकि आपको आवाज क्लियर नहीं आया तो इसलिए आपको समझा नहीं, आपके नेटवर्क पे आपको समझा नहीं। ऐसा बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हाँ भाई, नो कमेंट्स। द ट्रूथ इज द रिसीवर हैज नॉट अंडरस्टूड एट ऑल। वही जो मैंने अभी अब डिस्कस किया, हो सकता है सच ऐसा होगा कि सामने वाले को समझा ही नहीं ऐसे, और उसने अपना पार्ट ठीक से करेगा ही नहीं फिर उसके बाद ऐसा। तो ये बहुत कॉमन है। तो यूजुअली कब होता है हम लोग जानते हैं। चलो, पासिंग जजमेंट्स, इंटरेस्टिंग वन। ये प्योरली आजू बाजू वाली औरत वाला सीन है। Many communication failures are caused because the message tends to pass a judgment against the receiver. बात करते वक्त ऐसा लग जाता है कभी कभी आपने उसको जज कर दिया, मैं जानता हूं ना तू कैसा है करके। मतलब ऐसा भी सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरी बुराई कर रहा है कि मेरी तारीफ कर रहा है। अंडरस्टूड? देयरफॉर इट इज नॉट रिसीव्ड एज इट एट इट्स फेस वैल्यू। तो जो बोला जाता है ना, उसके फेस वैल्यू पे उसको यूजुअली रिसीव नहीं करना चाहिए। गिविंग प्रेसिडेंस to expression of opinion over the facts and use of offensive or annoying expressions ensure that the receiver becomes guarded and defensive. तो जब भी हम लोग ये तरीके का बात करते हैं ना, जहाँ पे हम लोग अपना ओपिनियन देते हैं फैक्ट्स को छोड़ के, ओके, या फिर ऑफेंसिव या अनोइंग वर्ड्स या एक्सप्रेशंस यूज करना, ओके, तो उस टाइम पे जो रिसीवर है वो क्या करेगा, खुद को बचाने को ट्राई करेगा, कवर अप करने ट्राई करेगा, भाई तो ऐसे कैसे बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ऐसे डिफेंसिव होना या खुद को गार्ड करना। तो ये टाइम पे क्या होता है, कम्युनिकेशन इट्स अनक्लियर। अनक्लियर भी बोल नहीं सकते, इस केस में हम लोग ने सीधा एक जजमेंट पास कर दिया, जो हम लोग को राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। जजमेंट कोई आपके बारे में कभी पास कर सकता है मालूम है? आपके पेरेंट्स है, आपके भाई बहन है, जो आपके साथ बचपन से लेकर अब तक रहे, जो आपके साथ 2 साल रहा है, आपके फ्रेंड्स है, या कोई आपके साथ 5 साल रहे, वो आपको जज करे वो सही नहीं है। इवन आप भी किसी को जज कर रहे हो तो यू हैव टू जज समवन और द अदर बेस्ड ऑन नॉट द एक्सपीरियंस और वॉट एवर यू फेस्ड। वो कैसा होता है, कंडीशनल होता है। किसी का कैसा कंडीशन था तो वो टाइम पे उसने ऐसा बिहेव किया क्योंकि उसका नेचर ऐसा था। उसका नेचर ऐसा नहीं होता तो कंडीशन ऐसा नहीं बनता, बिहेव ऐसा नहीं करता। इट इज एज सिंपल एज दैट। और उसके बेस पे आप अगर जज करते हो, दैट मीन्स यू आर फुलिश। अंडरस्टूड एवरीवन? a lot of people judge lot of people in different ways in different situations, but वो जजमेंट किस किस बेसिस पे आता है? सिचुएशनल बेसिस पे। अभी आप अपने घर वाले हैं, उनको आप रग रग से जानते हो, तो आप उनको जज करते हो ना, तो इट इज लाइक इट इज नॉट सिचुएशनल, you know them how they are, whether they are nice or whether they are not nice or whatsoever. Understood? So technically one should avoid 99.99% of the times the words coming out of your judgment. One, implied meanings.
with the relevant examples, of course. Now, implied meanings. Messages may not always convey a meaning in the straightforward manner if the background of the sender and the receiver is not similar. मतलब familiarity एक दूसरे का अगर similar नहीं है तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटी ऐसा भी है कि जो एग्जैक्ट मीनिंग समझवाने को ट्राई करना है वो ना समझ पाए. अंडरस्टूड. तो इम्प्लाइड मीनिंग, तो जो उसको समझा उसने अपना मीनिंग वो लगाया ऐसे. तो जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देते हैं, शादियों में जाते हैं और पानी वगैरह के ग्लास भरे हुए रहते हैं, हम लोग सामने वाले को बोलते हैं भाई एक ग्लास दे, तो एक चुपचाप खाली ग्लास दे देगा क्योंकि उसको ये समझ में आया कि उसने ग्लास मांगा, उसने ये नहीं बोला पानी वाला ग्लास दे. और व्हाट्सएवर अपना अपना इम्प्लाइड मीनिंग्स लगाते हैं लोग मिसअंडरस्टैंडिंग तरीके से. नाउ लैक ऑफ ट्रस्ट. The relationship between the sender and the receiver plays an important role in the effective communication. ये आप लोग भी पर्सनली जानते रहेंगे. If two of them do not share trust and understanding, there is strong possibility of communication failure. एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते तो उनके शब्दों पे भी क्या ध्यान देंगे और क्या भरोसा करेंगे और कम्युनिकेशन पूरा कैसे होगा उसके अंदर. मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, उसको क्या करवाना है या हमको क्या करवाना है हम लोग करवा नहीं पाएंगे क्योंकि हमको पता ही है कैसा है करके ऐसे, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है उस बेस पे. अंडरस्टूड. द इंफॉर्मेशन शेयर देम बाय देम विल बी मिनिमल. ऐसा भी नहीं कि पूरा इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, कम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. बोथ ऑफ देम विल आल्सो टेंड टू ट्रीट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड विद सस्पिशन. तो जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है वो थोड़ा सस्पिशन जैसा रहेगा, इनकम्प्लीट टाइप, शक हो जाएगा इंफॉर्मेशन पे ऐसा. ना प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक डिस्टॉर्शन. मैसेजेस कम्युनिकेटेड थ्रू डिफरेंट वर्ड्स में बी डिस्टॉर्टेड इंटेंशनली. ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, चालाक लोगों का खेल है ये. जो मैसेज है ना वो जानबूझ के अलग तरीके से बोला जाएगा सामने वाले को. However, the words are words that often mean different things to different people and thus cause non-deliberate distortions. अभी इसकी वजह से ऐसे डिस्टॉर्शंस हो जाएंगे जो हम लोग उसको ठीक नहीं कर पाएंगे. अभी एग्जाम्पल कैसा मालूम है, ऐसे वर्ड्स जो आपको पता है पर सामने वाले को पता नहीं है, जो आप लोग सेकेंड चैप्टर के अंदर सीखते हो. आपको पता है बहुत सारे वर्ड्स का आपको फेमिलियरिटी पर सामने वाले को फेमिलियरिटी नहीं है, तो आप ऐसे टाइप का कम्युनिकेशन यूज करते हो जिसके अंदर आप तो शाना बन के दिखते हो लेकिन सामने वाले को समझा नहीं तो उसका मीनिंग वो किस तरह से लेगा, उसका कोई लॉजिक उसके अंदर कनेक्ट नहीं होगा. द सीनियर सिलेक्ट्स द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस which he thinks appropriate to convey the meaning intended to be communicated. But receiver, on the other hand, reads or listens to the message and interprets it within his own frame of reference. Own frame of reference मतलब familiarity of words. यहाँ पे वो लोग वो एग्जाम्पल देने को ट्राई कर रहे हैं. क्लियर है? अंडरस्टूड एवरीवन? तो जितने शब्दों का आपको ज्ञान है आप उतना शेयर करोगे, सामने वाले को शब्दों का ज्ञान नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा. वो अपने हिसाब से उतना समझने को ट्राई करेगा जितना उसको मीनिंग पता है. ये जो कम्युनिकेशन का अड़चन है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन. ये पहला वाला जो पॉइंट था ना उसका काउंटर पॉइंट है. पहला वाला पॉइंट क्या था? लैक ऑफ प्लानिंग. तो उसका काउंटर पॉइंट है आइडियाज को पहले से क्लैरिफाई करो, समझ के लो आपको क्या भेजना है, उसके हिसाब से खुद के थॉट को अरेंज करो और फिर भेजो मैसेज को. इजी टू अंडरस्टैंड. कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर. रिसीवर को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेट करो. उसको कितना भाषा समझेगा, कितना मैं बोलूंगा उसको उतना समझेगा या नहीं, नहीं समझेगा तो उसको मॉडिफाई करो. और बात करते वक्त उसका भी दिमाग का लेवल, उसका समझने का लेवल आपके सामने रख के फिर कम्युनिकेशन करो. नेक्स्ट, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन. आप जो भी कम्युनिकेशन प्लान करते हो ना, आसपास आपके कोई लोग हैं, अगर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रहेगा तभी ऐसा करो, अनइम्पॉर्टेंट नहीं. वरना आपका हस्बैंड और वाइफ का कम्युनिकेशन चल रहा है, उसमें आप किसी तीसरे पार्टी को अंदर बीच में लेके आके पूछोगे ए तुझे क्या लगता है ऐसा मेरे को बोलना चाहिए क्या, वो बोलेगा भाड़ में जा भाई, तेरा और उसका पर्सनल मैटर है, मुझे क्यों पूछ रहा है, मुझे क्यों बता रहा है. वो नहीं हो जाना चाहिए. समझा? तो जहां पे आप कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करने को ट्राई कर रहे हो और कुछ इंपॉर्टेंट काम सामने वाले से कराना है आपको वो टाइम पे, तभी आप किसी को पूछो, तभी आप किसी का सजेशन लो. समझे? तभी आप कंसल्टेशन लो कि क्या लग रहा है, इज इट गुड इनफ. और वो भी कंसल्टेशन उनसे लेने का जिनको समझ में आता है, वरना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए. फॉलोड एवरी. चलो आगे बढ़ते हैं. बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज. ये तो कॉमन सेंस है, तो सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. बात करते हो तो आपकी भाषा का प्रयोग करते वक्त ध्यान रखो ये चीजों का. आप जिस तरह बात कर रहे हो टोन का ध्यान रखो, मैसेज में आप क्या डाल रहे हो उसका भी ध्यान रखो, कुछ भी बकवास ना करो,
सही तरीके से लिखो, सही टोन में बात करो। सामने वाले के फीलिंग्स को आपको खराब करने का या हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। डोंट टेल मी आपको वो रिपीटेड चाहिए किसी को। चलो लेट्स गो अहेड। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू द लिसनर। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मैसेज शुड बी हेल्पफुल टू द रिसीवर। जो भी हम लोग सब्जेक्ट मैसेज में देने वाले, जो भी चीजें देने वाले मैसेज में कम्युनिकेट करने वाले, वो रिसीवर के भी काम आना चाहिए। सिर्फ अपने काम का नहीं देखना चाहिए। द नीड एंड द इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर शुड स्पेसिफिकली बी केप्ट इन माइंड। सामने वाले का रिक्वायरमेंट क्या है, उसका नीड क्या है, वो समझ के हम लोग ने ध्यान में रख के फिर कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव इन सच अ सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग कंसिडर कर रहे हो सामने वाले के फीलिंग्स को, उसके रिक्वायरमेंट्स को और उसके बिहेवियर को और व्हाट्सएवर। तो वो कंसिडर अगर आप कर रहे हो तो आपको भी कंसिडर किया जाएगा आपके कम्युनिकेशन के टाइम। इजी टू अंडरस्टैंड। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, ये हम लोग ने स्टार्टिंग में भी देखा है। The purpose of the feedback is to find out whether the receiver has properly understood the meaning of the information received. In the face-to-face communication, the reaction on the face of the receiver can be understood. तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी चैप्टर में देखा है कि फीडबैक सामने वाले का समझ में आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं आया, वो फीडबैक पे डिपेंड करता है। तो फीडबैक का मेन पर्पस वही है कि सामने वाले को समझा कि नहीं समझा। तो अभी जब हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं वो टाइम पे तो उसके मुंह के चेहरे के हाव भाव से ही मालूम पड़ जाएगा कि इसके कितना पल्ले पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है, कितना नहीं समझा है, कितना समझा है। बट रिटर्न कम्युनिकेशन के केस में हम लोग को फीडबैक के लिए वेट करना पड़ता है, या हम लोग ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है ना, उस पर बेस्ड आपको फीडबैक है। जितना अच्छा ब्यूटीफुली आपने लिखा है, नॉट ब्यूटीफुली, कंसर्न्ड तरीके से बोल सकते हैं, सुंदरता आप लोग अपने पर्सनल लेटर्स में रखो। तो इन राइचियस मैनर, करेक्ट मैनर में अगर आपने लिखा है तो आपको डेफिनेटली फीडबैक आएगा। रिटर्न वाले केस का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज। तो अभी कंसिस्टेंसी मतलब हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन रिसीवर को दे रहे हैं ना, वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं उसको नकार नहीं देना चाहिए। इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड टेक्निक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी जैसे अभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई मैसेज भेजने वाले हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग चीजों को, ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स में ध्यान में रखते हुए मैसेज को फ्रेम किया जाए। ऐसे नहीं कि हम लोग हमारे मन के हिसाब से फ्रेम कर रहे हैं और हमारा मन का भावना ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही चल रहा है। वो नहीं हो जाना चाहिए। यू आर नॉट राइटिंग दोस पर्सनल थिंग्स ओवर देयर। When a new message has to be sent in place of the old one, it should always make a mention of the change, otherwise it creates some doubt. Interesting and important stuff. अगर आपने पहले कोई ऑर्डर भेज दिया है, ओके, और ऑर्डर के बाद आपको करेक्शन डालना है ऑर्डर में, तो आप करेक्शन वाला मेल डालते वक्त या मैसेज डालते वक्त आपने उसको बताना है, उसके अंदर मेंशन करना है कि करेक्टेड मैसेज है। वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा, पहला वाला भेजू कि दूसरा वाला भेजू। इसने पहले तो 2000 का ऑर्डर दिया है, अभी 1000 का ऑर्डर दे रहा है, तो पेमेंट तो 1000 का ही करेगा। अगर मैंने 2000 रेडी कर दिया तो कम्युनिकेशन गैप आएगा उसमें, वो नहीं होना चाहिए। फॉलो अप कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आपने कर लिया कि जैसे भी रिटर्न कम्युनिकेशन है, अदर देन ओरल कम्युनिकेशन, अदर देन ओरल कम्युनिकेशन, आपने जो भी टाइप का कम्युनिकेशन किया है ना, उससे आपने फॉलो अप भी करना चाहिए कि मैंने आपको ईमेल भेजा, आपको समझा, वो आपको मिला क्या, ओके, ऐसे टाइप का चीज है। क्योंकि बहुत सारे लोग ईमेल देखते हैं, बहुत सारे लोग ईमेल नहीं भी देखते। तो ऑफिशियल ईमेल्स के टाइम पे हम लोग को समझना चाहिए कि भाई वो उसके पास गया है कि नहीं, उसने उसको पढ़ा है कि नहीं, पढ़ेगा तो रिस्पॉन्ड कब करेगा। तो दैट इज कॉल्ड फॉलो अप कम्युनिकेशन। समझा? ताकि हम लोगों ने जो भेजा है उसके ऊपर और स्ट्रेस दिया जाए कि देखो आप भेज दिए, तो वो पर्सनली चेक करेगा ऐसे उस चीज को। It is the essence of communication that both sender and receiver should be good listeners. Both should listen to each other's point of view with attention, patience and positive attitude. ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन होना चाहिए। सुनने के टाइम शांति भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला बोल रहा है और हम लोग उसका बात काट के उसको डिसरिस्पेक्ट करके हम लोग हमारा पॉइंट रखने को ट्राई कर रहे हैं, ऐसा। लेकिन सामने वाला बहुत बोल रहा है तो आप भी चुप नहीं बैठना चाहिए, आपने भी कुछ पॉइंट पे लेकिन अच्छे जेस्चर देके उसको बात कनेक्ट करना चाहिए आपका, ऐसे यूजुअली। A sender can receive much relevant information by being a good listener. सेंडर बहुत अच्छा बोलते हैं ना, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का फीडबैक रिसीव कर सकता है एक अच्छा लिसनर बन के भी। अंडरस्टूड?
तो you also have to be a good listener in communication ऐसा.